So class 6, the first term is curves. Okay, curve. So when you draw something, the definition that I have written, you can see, when you draw something, without lifting up the pencil is called as curve. Okay, lifting up means lift up करना means उठाना, means पेपर से बिना उठाए, पेपर से बिना पेन या पेंसिल को उठाए जो कुछ भी आप ड्रॉ करते हैं, that is your curve. And also class 6, understand this that this is the mathematical definition of the curve. It means that when you draw something like this, okay, or this, okay, I have not lifted up the pencil while I was drawing this, so this is something curve, this is a curve. Okay, and likewise if you draw this is also a curve. Okay, so I have drawn some rectangle like figure, so this is also a curve. Actually in the daily life usage, we consider the curve as something that is twisted, okay, that is not straight. Okay, we consider curve in that way, but in mathematics the curve can be straight. Okay, understand this, that curve can be straight. It means that whatever you draw, when you draw with the pencil or pen, whatever you draw without lifting it up, बिना उसको उठाए आप जो कुछ भी draw करेंगे, that is your curve. In mathematics it is simply a curve. So curve can be straight in mathematics, like this is a curve. Okay, this can be considered as a curve. Next is, in the curve there are categories, that simple curve, open curve, closed curve. So simple curve, if a curve does not cross itself, it is called as a simple curve. It means जैसे ये वाला curve था, ये simple है, no, दिस कर्व इज क्रोस्ड हेयर, है ना, इस कर्व ने अपने आप को अपने एक दूसरे लाइंस को ही, अपनी ही लाइंस को क्रॉस किया, कट किया, तो ये सिंपल कर्व नहीं है. ये वाला कर्व सिंपल है, ये वाला कर्व सिंपल है. इट मीन्स लाइक इफ आई ड्रॉ अ सर्कल लाइक दिस, ओके, तो इट इज अ सिंपल कर्व. और आई ड्रॉ लाइक दिस, इट इज़ अ सिंपल कर्व, क्योंकि इसने एक दूसरे अपने लाइंस को क्रॉस नहीं किया है. तो इफ अ कर्व डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, इट इज कॉल्ड एज अ सिंपल कर्व. ओके, डोंट कंसिडर दिस क्लास 6, this is something. Okay, so open curve. Next is your open curve. When a curve is open from any side, it is called as a open curve. Like if I draw like this, okay, this is a open curve. If I draw like this is a open curve. ओके, इट मीन्स किसी भी साइड से वो ओपन है, पूरा कंप्लीट क्लोज नहीं है, बंद नहीं है, देन इट इज कॉल्ड एज अ ओपन कर्व. ओके, आपको ये डेफिनेशन ध्यान से अभी समझनी है, बिकॉज इन द एक्सरसाइज दे आर आस्किंग यू टू ड्रॉ द रफ डायग्राम ऑफ ओपन कर्व, क्लोज्ड कर्व, और ये टर्म्स आपको हमेशा ध्यान भी रखनी है. तो ओपन कर्व, क्लोज कर्व की डेफिनेशन आपको अच्छे से आएगी, देन यू विल बी एबल टू ड्रॉ द फिगर. नाउ सेकेंड इज, next is your closed curve. If a curve is not open from any side, it is called as a closed curve. Means not open, it means like this. Okay, this circle closed, this, these all are closed, है ना, these are not open from anywhere, so therefore these are called as a closed curve. Okay, next, so I'm repeating one more time. Curve is your any figure that you draw without lifting up the pencil, this is your curve. Then simple curve, if a curve does not cross itself, वो अपने आप को क्रॉस नहीं करता, कहीं भी कट नहीं करता अपनी लाइंस को, then it is called as a simple curve. Open curve, when a curve is open from any side, it is called as a open curve. It means वो close नहीं है, यहाँ से open है, यहाँ से open है. Next is closed curve. If a curve is not open from any side, it is closed curve. It means कहीं से भी open नहीं है, तो वो closed curve हुआ. Next is your polygons. Polygon is important term, more important term, because आप इस term के लिए polygon को आप बार बार in your higher standard, in your higher classes, you will learn it, you will read it, you will come to know this, know about the polygon many times. So polygon is, what is polygon? The simple closed curve made up entirely of line segment is called as polygon. It means it is what, it is a simple closed curve. तो ये भी एक कर्व ही है, पॉलीगन एक
कर्व है आपका सिंपल है, सिंपल है इट मीन्स कहीं पर भी अपनी लाइंस को क्रॉस नहीं कर रहा, ठीक है। क्लोज्ड है इट मीन्स सभी जगह से बंद है, क्लोज्ड है कहीं से भी ओपन नहीं है। मेड अप इंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स, इट मीन्स जो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट्स से मिलके बना है। लाइक अगर मैं ये आपके पास ड्रॉ करूं, okay, so this is basically a polygon, okay. If I draw this, दिस इज अ पॉलीगन, इट मीन्स एंटायरली लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है। अगर मैं इस पॉलीगन की नेमिंग करूं, मतलब मैं हर एक वर्टेक्स को, वर्टेक्स में अभी बताऊंगी आपको क्या होता है, जैसे ए बी सी डी ई है ना, पी क्यू आर एस, ये मैंने वर्टेक्स की नेमिंग करी है इस पॉलीगन के। तो अगर मैं इसकी नेमिंग करूं तो ए बी सी डी ई इज अ पॉलीगन, ओके। पी क्यू आर एस इज अ पॉलीगन जो आपको स्क्वायर की तरह अपीयर हो रहा है। सो दीज आर द पॉलीगन्स, ओके। नाउ नेक्स्ट इज योर पोर्शन ऑफ फिगर। पोर्शन ऑफ फिगर में आप क्या क्या डिस्कस करना है, we'll see here, you can see here that this is a curve, okay, this is a simple curve and also this is closed. So simple closed curve के portion of figure, portion में आपको मैं बताना चाहती हूँ, it means you can see that A point is here inside है ना, C point is at outside this curve है ना, you can see, and B point is on the curve. So you can see that this portion, this here A is in the interior of the curve. तो इस कर्व का, ये जो आपका सिंपल क्लोज कर्व आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर का जो रीजन होता है, ठीक है, अंदर का जो रीजन होता है, दिस इज कॉल्ड एज इंटीरियर. सो इफ दे आस्क यू इन द एग्जाम दैट विच पॉइंट इज इन द इंटीरियर ऑफ दिस कर्व, सो यू विल आंसर इट एज A because A is in the interior of the curve. Okay, this तो कर्व के अंदर का जो पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज इंटीरियर, और जो कर्व के बाहर जितना भी पोर्शन है, जितना भी आउटसाइड, यहाँ पर हो यहाँ पर हो यहाँ पर हो, कहीं पर भी आउटसाइड जितना भी पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज एक्सटीरियर ऑफ द कर्व. दैट पोर्शन इज एक्सटीरियर, ओके, that is exterior. And this B point, the point that is this on the curve, this is basically on the curve, okay. ये आपका boundary of the curve है, this is on the curve, or this is can be called as or boundary of the curve. So this is boundary. So when you are asked that where is B, so B is on the curve, point A is in the interior of the curve, point C is in the point C is at the exterior of the curve, okay. So these are three portion of the curve, and also the interior along with the boundary. When we talk about interior along with the boundary, okay, that is called as region, उसको region बोलते हैं, ठीक है. So these are the terms जो आपको थोड़ा ध्यान रखनी है. Now based on this, now next is your sides, vertices and diagonals. So understand that also. After that we will have our next exercise of this chapter. So the next term are your sides, vertices and diagonals, okay. So sides, vertices, diagonals are in the context of the polygons. Polygons क्योंकि आपके curves हैं जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बने हैं, ठीक है. लाइन सेगमेंट से मिलकर बने हैं तो आपका जैसे लाइक यू कैन कंसिडर स्क्वायर हैज 4 साइड्स, इट मीन्स 4 लाइन सेगमेंट्स है ना. सो साइड्स, द साइड्स की डेफिनेशन देखिए, द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग अ पॉलीगन आर कॉल्ड साइड्स. तो जो लाइन सेगमेंट्स से पॉलीगन बना है दैट लाइन सेगमेंट्स आर द साइड्स ऑफ दैट पॉलीगन, ठीक है. पॉलीगन एक्चुअली आई मिस्ड समथिंग. पॉलीगन मीन्स, पॉलीगन वर्ड का मतलब क्लास 6 अगर मैं आपको बताऊं, पॉली मीन्स मैनी, ठीक है. पॉलीगन है ना आपके पास वर्ड, poly means many and gun means sides. So basically polygon का मतलब होता है many sides, मतलब कहने का मतलब ये कि बहुत सारी sides वाली figure, that is called as polygon, okay. So this is something. Now a vertex, the meeting point of a pair of sides is called vertex. It means if two sides, whenever there is polygon, it is made up of many sides,
So whenever two side will meet at a point, that point is your vertex. Okay, I will explain it with the figure also. So for now, understand the definition. And the diagonals, the third is diagonals. When two non-adjacent vertices are joined, diagonals are formed. Non-adjacent मैं आपको अभी explain करती हूँ. Like here you can see this this figure, this polygon, this is square. Okay, I have made it a square, so you can name it as, I have named this as ABCD. Here you can see that this polygon, this is a polygon because this is a curve entirely made up of line segments, so therefore this is a polygon. ठीक है. हाँ, ये बात अलग है कि इस पॉलीगन का हमने एक स्पेशल नेम रखा हुआ है स्क्वायर. स्क्वायर इसलिए रखा हुआ है क्योंकि स्क्वायर की 4 साइड इक्वल हैं और 4 साइड्स हैं, तो इसलिए हमने नेमिंग की थी. ठीक है. सो दैट विल अगेन बी रिपीटेड इन दिस चैप्टर. सो हियर this is a polygon, so you can see that polygon is made up of side AB. AB is a side. ठीक है. Likewise BC is a side, लाइन सेगमेंट जिससे वो मिलकर के बना है. ए बी एक लाइन सेगमेंट है. आपको पता है कि लाइन सेगमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, इट हैज़ टू एंड पॉइंट. तो ए बी इट हैज़ टू एंड पॉइंट. हियर इज अ पॉइंट एंड हियर इज अ पॉइंट एंड ए बी इज अ लाइन सेगमेंट. बी सी इज अ लाइन सेगमेंट. तो मैंने क्या कहा था साइड्स में, द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग अ पॉलीगन आर कॉल्ड एज साइड्स. तो इस वाले पॉलीगन के अकॉर्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे, आपके साइड हो जाएंगे ए बी, लाइन सेगमेंट का मार्क ऊपर आएगा, देन बी सी, then CD and then DA या AD. ठीक है. These are 4 line segments here according to this polygon. Okay. Now vertex. The meeting point of a pair of side is called as a vertex. You can see that this is a side. Okay. And this is a another side. तो पेयर का मतलब क्या होता है, टू साइड्स का मीटिंग पॉइंट देखिए. दिस इज मीटिंग पॉइंट है ना. So B is the vertex. Likewise, this is a side, this is a side, this is a meeting point. C is a vertex, है ना. CD is a side and this DA या AD is a side. These two sides are meeting at this point, so therefore this is a vertex. And similarly AD and AB are meeting at A, so A is a vertex. तो यहाँ पर कौन से vertex हो गए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन? भी आपकी मीटिंग पॉइंट ऑफ टू साइड हो गए ए बी सी एंड डी. दीज आर द 4 वर्टेक्स ऑफ दिस पॉलीगन. ओके. नाउ डायगोनल्स. डायगोनल्स में मैंने बोला है व्हेन टू नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस आर जॉइंड, डायगोनल्स आर फॉर्म्ड. अब नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस देखिए, एडजेसेंट का मतलब होता है, आई विल राइट हियर इन हिंदी, आपको ध्यान रखना है, बराबर में. इट मीन्स बाय साइड. ओके, मीन्स बिल्कुल बराबर में, बिल्कुल उसके साइड में. ठीक है. सो दैट इज एडजेसेंट. तो ए के एडजेसेंट वर्टिसेस कौन सा है, बी, मतलब कंसेक्यूटिव, मतलब एकदम उसके बाद वाला है ना, दैट इज एडजेसेंट. मैंने लिखा है नॉन एडजेसेंट. नॉन एडजेसेंट मतलब कि जो एडजेसेंट नहीं है. तो ए का एडजेसेंट है बी, बी का एडजेसेंट वर्टिसेस है सी, सी का एडजेसेंट वर्टिसेस है डी, डी का एडजेसेंट वर्टिसेस है ए. लेकिन ए का नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस कौन सा है, मतलब जो बिल्कुल उसके बराबर में नहीं है. देखो, ए के बराबर में एकदम बी भी है, ए के बराबर में एकदम डी भी है. ए का नॉन एडजेसेंट कौन सा वर्टिसेस है, सी. तो जब हम नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन कर देते हैं बाय यूजिंग स्केल, देन दिस लाइन इज कॉल्ड एज योर डायगोनल. दिस इज कॉल्ड एज डायगोनल. ओके. सिमिलरली बी का एडजेसेंट वर्टिसेस था सी एंड ए. बी के एडजेसेंट है ना, सी एकदम बराबर में है, दैट इज ऑन द राइट साइड, और डी के और बी के बराबर और बी के लेफ्ट में एकदम बराबर में ए है, तो ये भी एडजेसेंट है. नॉन एडजेसेंट कौन सा है, डी. तो डी को अगर मैं ज्वाइन कर दूं बी से, देन दिस लाइन, दिस इज द डायगोनल. तो बेसिकली जब आपका 4 साइड का ये पॉलीगन है, तो इसमें कितने डायगोनल्स फॉर्म हो सकते हैं, ओनली 2. So these two are the diagonal of this polygon. Okay, so this is about side vertices and diagonals. Now moving toward our next exercise, class 6, that is your exercise 4.2, and that is very much simple, very much simple. If you have understood the each and every definition that I have told in this video, तो आपके लिए exercise बिल्कुल भी typical नहीं है.
Okay, so exercise 4.2 I'm discussing here, and you will do in your notebook drawing the figures and also writing down the questions. Okay, so here you can see classify the following curves as open or closed. तो open और closed curve को classify करना, it means you have to write down that whether the given curve in the A part is open और क्लोज्ड. आपको क्लासीफाई करने का मतलब ये है कि आपको बताना है कि ये ओपन है या क्लोज है. तो हेयर यू कैन सी इजिली इट इज़ एन ओपन कर्व, क्योंकि ये इसकी यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, जॉइन तो नहीं है ना एंड पॉइंट्स इसके कहीं पर भी. तो दिस इज ओपन कर्व. तो आप कर्व फॉर्म करेंगे और उसके साइड में लिखेंगे ओपन कर्व. दिस इज क्लोज्ड कर्व. दिस इज ओपन कर्व बिकॉज इट इज ओपन फ्रॉम हेयर. दिस इज क्लोज्ड कर्व एंड अगेन दिस इज क्लोज्ड कर्व. तो ये आपका ये हो गया. नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 2. ड्रॉ रफ डायग्राम्स टू इलिस्ट्रेट द फॉलोइंग ओपन कर्व एंड क्लोज्ड कर्व. इलिस्ट्रेट मीन्स इलिस्ट्रेट करना मीन्स एक्सप्लेन करना, बताना. तो रफ डायग्राम्स आपको ड्रॉ करने हैं जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में ड्रॉ करके बताए थे. ओपन कर्व एंड क्लोज्ड कर्व का कोई भी डायग्राम आप ड्रॉ कर दीजिए, एनी डायग्राम. बस आपको ध्यान ये रखना है कि ओपन कर्व में साइड्स किसी भी जगह से कहीं से भी थोड़ी या ज़्यादा कुछ भी ओपन होनी चाहिए और क्लोज्ड में एकदम बंद होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए. ठीक है, सो यू कैन डू दिस बाय योरसेल्फ आल्सो because I have drawn the figures in the example and the definitions. Okay, now third is your draw any polygon and shade its interior. तो आपको कोई भी polygon draw करना है और उसका interior shade करना है. तो आप polygon draw करेंगे, it means that should be by lines. तो आपने अगर ये polygon draw किया उसके बाद इसका interior क्या है ये, तो इसको शेड कर देना है. ओके, यू विल ड्रॉ एनलार्ज फिगर, मतलब आप थोड़ा बड़ा फिगर अपनी कॉपी में बनाएंगे. सो दिस यू हैव टू डू. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. कंसीडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस. तो आपको ये फिगर कंसीडर करनी है और क्वेश्चन आंसर करना है. इज इट अ कर्व. तो ये इज इट अ कर्व वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर येस या नो में दिया जाता है. ओके, सो क्या ये इन्होंने पूछा है क्या यह कर्व है. Is this a curve? Is it a curve? So you can see that yes, it is a curve because it can be made without lifting up the pencil. And okay, so this is a figure, this is a curve. So and the second part, is it closed? So yes, it is closed because we can see that it is not open from anywhere. तो आपको yes और no में ही सिर्फ आंसर करना है. Is it closed में भी yes होगा, is it a curve में भी yes होगा. Yes, it is a curve. Illustrate if possible each one of the following with a rough diagram. फिफ्थ क्वेश्चन में भी आपको रफ डायग्राम फॉर्म करना है, बनाना है. एंड फर्स्ट पार्ट इज सेइंग अ क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगन. तो आपको क्लोज्ड कर्व बनाना है जो कि एक पॉलीगन नहीं है, मीन्स साइड से बना नहीं होना चाहिए. इट मीन्स लाइक आप अगर आपने ये ड्रॉ कर दिया तो ये एक क्लोज्ड कर्व है और ये पॉलीगन नहीं है क्योंकि ये साइड से क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से फॉर्म नहीं हुआ है. ठीक है. एन ओपन कर्व मेड अप ऑफ एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स. तो ओपन कर्व होना चाहिए और लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए. तो आपने अगर ये वाला कर्व ड्रॉ किया तो आप इसको देख सकते हैं कि इसमें सभी के सभी लाइन सेगमेंट्स हैं और ये ओपन कर्व है. अ पॉलीगन विद 2 साइड्स. तो उन्होंने बोला कि एक पॉलीगन बनाइए 2 साइड से. इसका आंसर आपका है नॉट पॉसिबल. ओके, नॉट पॉसिबल. क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि आपका कभी भी 2 साइड का पॉलीगन नहीं हो सकता. मतलब अगर आपने ये वाली साइड बना दी, ठीक है, ये वाली साइड बना दी, 2 साइड्स हो गए, 2 लाइन सेगमेंट आपने बना दिए. तो थर्ड लाइन सेगमेंट की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी इसको क्लोज करने के लिए. जब तक वो क्लोज नहीं है फिगर, लाइन सेगमेंट से बनी हुई फिगर जब तक क्लोज नहीं है तब तक हम उसको पॉलीगन नहीं कह सकते. तो मुझे यहाँ पर थर्ड साइड की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी. तो कोई भी पॉलीगन मिनिमम थर्ड साइड का होना ज़रूरी है. ठीक है, एटलीस्ट उसकी 3 साइड्स होनी चाहिए. मतलब कि आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ साइड्स का पॉलीगन की अगर बात करें तो वो आपका ट्राइंगल है क्योंकि ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, यू नो. उसके बाद आपका 4 साइड पॉलीगन हो सकता है, 5 साइड, 6 साइड, 7 साइड. उसके बाद आप कितना भी साइड का पॉलीगन बना सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 साइड्स हमें चाहिए होती हैं एक पॉलीगन को फॉर्म करने के लिए. सो दिस इज अबाउट योर एक्सरसाइज 4.2 एंड द कॉन्सेप्ट दैट आई हैव डिस्कस्ड. नाउ moving further, class 6, I am going to discuss the angles in this video. So let us see what are angles and what are its properties. So class 6, now what is angle?
According to the definition, it is written here that an angle is made up of two rays starting from an initial point. ठीक है? Now I want to explain you that if you consider this pen, okay, this another pen you consider, and you just put them at like this, okay, you just put the two pens like this, then you can see that these two pens are like rays, two rays, है ना? ये समझ लीजिए कि ये इसका एरो है, ये इस रे का एरो है, और ये इस रे का एरो है, तो ये आपके टू रेज की तरह हैं, और ये एक कॉमन पॉइंट यहाँ पर आपका, यहाँ से ये ओरिजिनेट कर रहे हैं, ठीक है, एंड यू हैव पुट देम लाइक दिस. सो दिस, like when you are putting them like this, then this portion, this part, okay, this part, this one, this is your angle, this is called as angle. ठीक है? So according to the figure that is drawn here, an angle is made up of two rays starting from an initial point. It means if I mark this as an initial point, okay, and I mark it as O, okay, and this is a ray A, OA is a ray, okay, you know very well that what is ray, what is initial point. ठीक है? So इसलिए आपको ये समझ में आना चाहिए और डाउट नहीं होना चाहिए कोई भी कि रे क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देखिए, बट डाउट मत रखिएगा बिल्कुल भी, ठीक? सो OA इज अ रे, एंड अगर मैंने यहाँ पर मार्क किया, देन यू कैन सी दैट OB इज अ रे, okay, so two rays starting from an initial point do form an angle. What the angle? This is the angle. It means this, ये जो portion है ये आपका angle है, and the angle is measured by protractor, using protractor, okay, using D we measure an angle. ठीक है? वो आपका बाद में आएगा, अभी आपको basic concept जानना है बस कि angle कैसे form होता है. Two rays, when two rays starts from a single point, from an initial point, एक common point से जब two rays निकल रही हैं, ये common point हो गया ना, OA का भी point है ये और OB का भी point है, तो ये दोनों का common हो गया, तो two rays जब ये निकल रही हैं, then they are forming angle. Okay, now जब angle form हो रहा है, then this point is called as vertex of angle. Okay, vertex of angle, and these are rays, और इनको हम arms भी बोलते हैं एंगल की आर्म है ये. आर्म्स मीन्स टू आर्म्स हैं, एंगल में टू आर्म्स हैं एंड वन वर्टेक्स है. ठीक है? और इसको स्पेसिफाई कैसे करते हैं, मतलब कि जैसे आपने देखा था कि अगर ये आपका लाइन सेगमेंट था ए बी, तो आपने इसको कैसे डिनोट किया था, कैसे लिखा था, इस तरीके से. ठीक है? वैसे ही जब ये एंगल है आपका, तो इसको आप कैसे लिखते हैं, एंगल ए ओ बी. इट मीन्स जो आपका वर्टेक्स होता है दैट ऑलवेज कम्स इन बिटवीन. ठीक है? मतलब वर्टेक्स पर एंगल फॉर्म हो रहा है. ठीक है? वर्टेक्स पर एंगल फॉर्म होता है, और जहाँ पर वर्टेक्स पर एंगल फॉर्म हो रहा है, जब हम नेमिंग करते हैं एंगल की, तो वो हमेशा बिटवीन में आता है. मतलब आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, एंगल ए बी ओ ऐसे नहीं लिख सकते, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि B पर कोई भी B वर्टेक्स नहीं है, क्योंकि, और आपने B मिडल में लिख दिया है. ठीक है? सो दिस इज रॉन्ग. सो द वर्टेक्स कम इन द मिडल, सो AOB यू विल राइट इट एज एंगल AOB. आप इसको रीड करेंगे, रीड कैसे करते हैं, एंगल AOB, और लिखते कैसे हैं, लाइक दिस. और आप इसको एंगल BOA की तरह भी लिख सकते हैं, वो भी करेक्ट है. ठीक है? BOA. अगर कोई बच्चा ये देख रहा है कि मैं B को पहले लूँगा, तो एंगल BOA भी बोल सकते हैं इसको, और एंगल AOB भी बोल सकते हैं. ठीक है? सो वर्टेक्स जहाँ पर है, जो एंगल फॉर्म हो रहा है, वो बस मिडल में होना चाहिए, लाइक दिस. नाउ एंगल की कॉन्सेप्ट को ही थोड़ा सा और हम विजुलाइज करेंगे. लाइक हेयर यू कैन सी दैट दिस इज अ वर्टेक्स, दिस इज अ कॉमन पॉइंट, है ना. मैंने इसको O मार्क कर लिया, ये मेरी एक रे है, A मार्क कर दिया, B एंड C. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि OA, OB, OC 3 रेज हैं. ठीक है ना. और एंगल के कॉन्सेप्ट को ही मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर रही हूँ सिर्फ. ठीक है? आपको यहाँ पे देखना है दैट, यहाँ पर देखिए अब आप क्या क्या एंगल आपके पास फॉर्म हो रहे हैं. एक एंगल ये है, ठीक है ना, ये एंगल है क्योंकि ये टू रेज में है, क्योंकि ये टू रेज एक कॉमन पॉइंट O से ओरिजिनेट हो रही हैं, निकल रही हैं. ठीक है? सो स्टार्ट हो रही हैं एक O पॉइंट से, टू रेज OA OB, तो एंगल AOB, आपने एक एंगल आपका AOB बन गया. ठीक है? जिसको आप BOA भी बोल सकते हैं. एक एंगल आप देख सकते हैं कि ये भी एक एंगल है,
क्योंकि ओ बी ओ सी टू रेज हैं जो कि एक पॉइंट ओ से ओरिजिनेट हो रही हैं, टू आर्म्स है ना इसकी, तो एक एंगल आपका बी ओ सी बी हो गया। ठीक है, इट मीन्स ये वाली जो फिगर है ये इन टोटल 3 एंगल्स को कंटेन किए हुए है। थर्ड एंगल क्या है, ये वाला एंगल, ये भी तो एक एंगल है। ठीक है, ये एक एंगल है और ये एंगल कौन सा है, दिस एंगल इज नेम्ड एज ए ओ सी, क्योंकि ओ ए एंड ओ सी टू रेज हैं जो ओ पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही हैं, तो एंगल ए ओ सी। सो दिस इज समथिंग अबाउट नोइंग द एंगल्स, की एंगल की नेमिंग कैसे होती है, एंगल कैसे फॉर्म होता है। एंड आर नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3 इज पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट ओनली। ठीक है, सो क्लास 6 अगेन एक्सरसाइज 4.3 इज़ वेरी मच सिंपल। अगर आपने कॉन्सेप्ट को और डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लिया है तो आपको एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट इन द केस ऑफ डाउट जस्ट लेट मी नो इन द ग्रुप। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास एक फिगर गिवन है, क्लोज्ड फिगर है, और आपको इसमें एंगल्स नेम करने हैं। तो यू कैन सी दैट हेयर दिस ए डी इज अ लाइन, है ना, एंड दिस ए बी इज अ लाइन। ठीक है, सो टू लाइंस एक कॉमन वर्टेक्स पर हैं, तो यहाँ पर आपका ये वाला एक एंगल है। ठीक है, हमने वहाँ पर रेज कंसीडर किए हैं क्योंकि हम एक ओपन एंगल बना रहे थे। यहाँ पर एक क्लोज्ड फिगर है तो आपका हर वर्टेक्स पे आपको एक एंगल मिलेगा जो कि टू लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। ठीक है, ए डी एक लाइन सेगमेंट है और ए बी एक लाइन सेगमेंट है, मतलब कि एंगल आपका लाइन सेगमेंट में है, लाइन सेगमेंट से फॉर्म हो रहा है जब आपकी क्लोज्ड फिगर है। ठीक है, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। सो आपके टू लाइन सेगमेंट्स हैं यहाँ पर, और कॉमन वर्टेक्स पर जब ज्वाइन कर रहे हैं, कॉमन वर्टेक्स से मिले हुए हैं, तो आपका एक एंगल फॉर्म हो रहा है। तो आप इस एंगल को नेम कैसे करेंगे, एंगल डी ए बी। ठीक है ना, क्योंकि आपका ए जो है, जो वर्टेक्स है वो आपका मिडिल में आएगा, तो एंगल डी ए बी। सिमिलरली दिस इज एन एंगल बी, और आप इसको नेम कैसे करेंगे, ए बी सी। तो आपका एंगल कौन सा हो जाएगा, ए बी सी। 4 एंगल्स यहाँ पर बनेंगे क्योंकि 4 वर्टेक्स हैं फिगर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इज योर दिस एंगल, सो दिस इज योर बी सी डी, बिकॉज वर्टेक्स जो है आपका वो मिडल में आएगा, बी सी डी। एंड द फोर्थ वन इज योर दिस एंगल, और आप इसको ए डी सी भी लिख सकते हैं या सी डी ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज योर एंगल सी डी ए। Okay, so these are the 4 angles in this figure. Okay, we have to name that. Question number 2 is your, in the given diagram name the points. पॉइंट्स नेम करने हैं इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर का कॉन्सेप्ट जैसा आपका प्रीवियस में था वैसा ही आपका इस सेक्शन में है। तो इंटीरियर मीन्स अंदर की साइड जो है, इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई। पहले हम एंगल डी ओ ई को देखें कहाँ पर है, एंगल डी ओ ई, ये वाला एंगल आपका डी ओ ई है, और इसका इंटीरियर में क्या है, सिर्फ पॉइंट ए, तो आपका सिर्फ पॉइंट ए यहाँ पर आएगा। इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ई ओ एफ, ई ओ एफ के एक्सटीरियर में पॉइंट है आपका, सी पॉइंट भी एक्सटीरियर में है, डी पॉइंट भी एक्सटीरियर में है, और ए पॉइंट भी एक्सटीरियर में है। तो आपका सी पॉइंट, ए पॉइंट, डी पॉइंट सब कुछ एक्सटीरियर में है ई ओ एफ के। मतलब ई ओ एफ का इंटीरियर तो सिर्फ ये वाला पार्ट है, इसके बाद जो कुछ भी बाहर प्रेजेंट है वो आपका एक्सटीरियर में है। ठीक है, सो यू हैव सी ए एंड डी पॉइंट इन द एक्सटीरियर। ऑन एंगल ई ओ एफ, ई ओ एफ पर कौन सा पॉइंट प्रेजेंट है, एंगल बी। एंगल बी इज ऑन, सॉरी पॉइंट बी इज ऑन एंगल ई ओ एफ। ठीक है, तो ये आपको इसमें करना था। क्वेश्चन नंबर 2 में क्लास 6, मेक श्योर दैट इन द एक्सरसाइज 4.2 as well as exercise 4.3 you will write down the questions, draw the figure and complete the work in a tidy way in your notebook. Okay, now draw rough diagrams of 2 angles such that they have, अब आपको 2 angles के रफ डायग्राम ड्रॉ करने हैं। किस तरीके से, दैट दे मस्ट हैव 1 पॉइंट इन कॉमन। ठीक है, 1 पॉइंट कॉमन होना चाहिए उनके बीच में, मतलब कि 2 एंगल्स इस तरीके से बनाने हैं कि उनके बीच में सिर्फ 1 पॉइंट कॉमन होना चाहिए। बी पार्ट में 2 पॉइंट्स इन कॉमन, कि उनके बीच में 2 पॉइंट्स कॉमन होने चाहिए। सी पार्ट में 3 पॉइंट्स इन कॉमन, मीन्स 2 एंगल्स फॉर्म करने हैं कि 3 पॉइंट्स इन कॉमन होने चाहिए। एंड फोर्थ पार्ट में 4 पॉइंट्स इन कॉमन होने चाहिए 2 एंगल्स के बीच में। एंड फिफ्थ पार्ट में उन्होंने बोला है 1 रे इन कॉमन 2 एंगल्स के बीच में। ठीक है, सो फॉर द क्वेश्चन नंबर 3 आई एम प्रोवाइडिंग यू द सॉल्यूशंस ऑफ द डायग्राम, सो यू कैन रेफर फ्रॉम दैम। एंड दिस
So class 6 here, I have provided you the solution for question number 3, part A, B and E. Okay, so here you can see in the A part they are asked one point in common. तो आपका one point in common जो है two angles के बीच में, you can see that here angle AOC is an angle and angle BOD is an angle. ये two angles हैं और इनके बीच में one point in common है आपका O. So you can write by drawing the figure, you can write O is common. So point O is common. ठीक है. बी पार्ट में देखिए टू पॉइंट्स इन कॉमन. तो आपने टू एंगल्स ड्रॉ कर लिए. पहला काम आपका ये था कि आप टू एंगल्स ड्रॉ करें. तो आपने टू एंगल कौन से हैं आपके, ये आपके टू एंगल्स हैं, दैट एंगल ए ओ बी एंड दिस एंगल बी ओ सी, है ना. ये टू एंगल्स हैं और इनके टू पॉइंट्स इन कॉमन आपको दिखाने हैं. तो आप यू कैन पुट हेयर ई एंड एफ, टू पॉइंट्स. सो दीज टू पॉइंट आर कॉमन. इट मीन्स ई और एफ जो है वो एंगल ए ओ बी के ऊपर भी है, ए ओ बी में भी प्रेजेंट है वो, और बी ओ सी एंगल में भी प्रेजेंट है. तो ई एंड एफ आर टू पॉइंट्स दैट आर इन कॉमन. बी के बाद सी एंड डी पार्ट में थ्री पॉइंट्स इन कॉमन, फोर पॉइंट्स इन कॉमन. आप बिल्कुल सिमिलरली इसी तरीके से कर सकते हैं. मैंने इस ऐसे एक्यूट एंगल्स मीन्स एंगल्स ऐसे ड्रॉ किए हैं. आप इस तरीके से एंगल ड्रॉ करेंगे तब भी आप यहाँ पर पॉइंट दिखा सकते हैं कॉमन. ठीक है. ई पार्ट में आपका है वन रे इन कॉमन. सो हेयर यू कैन सी दैट दिस ओ ए इज अ रे, दिस ओ बी इज अ रे एंड दिस ओ सी इज द कॉमन रे. सो ओ सी इज कॉमन रे, है ना. ये कॉमन रे है दोनों एंगल्स की, क्योंकि ये एंगल बी ओ सी में भी प्रेजेंट है और एंगल ए ओ सी में भी प्रेजेंट है. सो दिस इज द कॉमन रे. सो यू नो व्हाट इज रे एंड व्हाट इज द meaning of the word common. Okay, so you have to use this only. Now class 6, this is all for today's video. In the next video we will discuss the triangles, quadrilateral and circle, and hopefully we will finish this chapter in the next video. This is all for today's class. Watch the complete video, understand the concept, complete your work and stay happy and stay safe at home.